back once again to your favorite channel, that is Luqman IAS Academy, and we are going to proceed in our today's rapid MCQ series, that is 10 MCQs daily based on our current events, that is current affairs. So here we go, the date being 18th of March, class 81. Okay guys, so here we go with the top 10 MCQs for the day with regard to the current affairs. Okay, so what we can see here, the first question on your screens, right? So consider the following statements regarding initial public offerings. IPO के बारे में बताना है. Okay, so the first option what we have got here, the first statement what we have got here, not the option, sorry. So it is the selling of the securities to the public in the primary market. Okay, it is the selling of the securities to the public in the primary market. Second option, second statement actually, a company's share price at the time of the IPO is determined by the Securities and Exchange Board of India. ओके कि किसी कंपनी का अगर आईपीओ लॉन्च हुआ है, यानी कि अगर हम साफ शब्दों में बात करें, स्टॉक्स अगर लॉन्च किए गए हैं, ओके, सो वो स्टॉक्स का जो प्राइस है यानी कि जो रेट है, ओके, वो कौन डिसाइड करेगा? ओके, तो वो सेबी होगी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उसी बिहाफ पे हमें जो है करेक्ट ऑप्शन यहां पर चुनना है. सो क्या है यहां पर मेन थीम क्वेश्चन का, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. Okay, so first of all the statement is with regard to IPO. So what is IPO? It is the selling of the securities to the public in the primary market. This statement stands absolutely correct. Yes, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect because it is not determined by SEBI. Okay, so guys हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा that is A only. That is the first option is correct. Okay, that is A only. Rest the second option, the second statement is incorrect. Hence it is wrong. Okay, so what we can see here, why this is in news. So Union Cabinet has approved listing of IREDA on stock exchange through the IPO routes. On Friday, approved listing of the Indian Renewable Energy Development Agency. ओके, IREDA इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. इसके स्टॉक्स जो हैं वो डाले जाएंगे हमारे बोर्ड में. ओके, नाउ आगे की कहानी. When we talk about the consideration, that is the explanations and so on. Okay, so you can see here IPO. Okay, it is the process by which a privately owned company is transformed into a public enterprise. So guys, you can highlight the term here. Okay, that is what is IPO. Okay, under IPO what we can see here, that is a privately owned company, okay, is transformed into a public enterprise and its shares are traded on the bourses. So this process is referred to as going public. तो अगर इसके अंदर का एक दूसरा पॉइंट अगर हम निकालें, इसके अंदर से एक दूसरा क्वेश्चन अगर हम निकालें, that is what do you mean by the term going public? ओके, गोइंग पब्लिक अगर मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका मतलब क्या होता है? तो ये भी है दैट इज लॉन्चिंग ऑफ द आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. कोई भी कंपनी, ओके, कोई भी XYZ कंपनी अगर ये अपने स्टॉक्स को जो है बेचना शुरू करती है, अपने जो है शेयर्स को बेचना शुरू करती है, तो इसका जो टर्म है इकोनॉमी में उसको क्या दिया जाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, और इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज गोइंग पब्लिक. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. एंड आपने देखा है कि IREDA को जो है अभी अप्रूवल दिया गया है आईपीओ के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में आने का. ओके, सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 stands incorrect. So we move on to the next question for the day, that is the second one. Recently there was reimposition of anti-dumping duty, ADD, okay, on the viscose stable fiber. Okay, VSF. अब viscose stable fiber हम जानते हैं कि इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से और खासतौर पे इंडियन टेक्सटाइल मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये हमेशा न्यूज में बना रहता है. तो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमारा ये विस्कोस स्टेबल फाइबर आज भी हमारे पास हमारे न्यूज में है, करंट अफेयर्स में है, और इसका हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो रिसेंटली देयर वाज reimposition of AD, that is anti-dumping duty on viscose stable fiber, which led to the global setback for textile industry. And on the recommendation of which of the following AD is reimposed?
Okay, anti-dumping duty is reimposed on the viscose staple fiber. Okay, so कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी इंस्टीट्यूट है या कौन सा एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है जिसने ऐड यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को विस्कोस स्टेबल फाइबर पे रीइंपोज करने की बात कही गई है? तो इज इट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? Okay, is it the enforcement directorate? Is it the central board of indirect taxes CBIC, or is it the directorate general of trade remedies? अब अगर थोड़ा सा हम इसमें लॉजिक में बात करें तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये इनका काम नहीं है. ओके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये देखते हैं इलीगल ट्रांजैक्शंस, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग एंड सो ऑन. ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ये भी यहां पर नहीं आएंगे. ओके, एज वी आर डीलिंग विद द एंटी डंपिंग ड्यूटी. सो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या हो जाता है? दैट इज डी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज. इफ यू रिमेंबर couple of months back we also discussed in our daily current affairs analysis class. Okay, viscose stable fiber, कुछ आज से एक महीने पहले के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था. ओके, कि ये किस तरीके से हम कहां से कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री से कितना ले रहे हैं, किस कंट्री को कितना दे रहे हैं. ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा. और उसमें भी नाम आया था हमारा यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज का. ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज? ओके, व्हाट इज दिस बॉडी, व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन? लेट्स डिस्कस देम ऑल. ओके, so if you can see the news here, the reimposition of anti-dumping duty, okay, it drives the global setback to the textile industry. Now, unlike other man-made fibers, viscose is biodegradable. सबसे पहला point, adding to its value as a sustainable textile option in a world that is becoming increasingly sustainability conscious. ओके, तो देखो यहां पर जो विस्कोस की बात करी जा रही है, विस्कोस स्टेबल फाइबर की बात करी जा रही है, उसमें एक टर्म है यहां आपके सामने, दैट इज अनलाइक अदर मैन मेड फाइबर्स. ओके, यानी कि ये जो विस्कोस है ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ये ओरिजिनल यानी कि नेचुरल फाइबर नहीं है. ठीक, सो अनलाइक other okay, MMF, that is the man-made fibers, viscose is firstly biodegradable. Okay, adding to its value as a sustainable textile option. अब पूरी दुनिया जो है इसको कहां बात कर रही है? हम बात कर रहे हैं that is sustainable development. What is sustainable development? That is developing with good speed, with rapid speed, without disturbing or troubling the environment and ecology. That means creating up that concept of greenery. Okay, yeah, maintaining that concept of greenery inside the blue planet. ओके, सो ये बात कही जा रही है. इस पे हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जब बात आती है, सो वी हैव गॉट द क्योटो प्रोटोकॉल विद अस, वी हैव गॉट COP15 विद अस, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, ओके, 2015. वी हैव गॉट COP22 विद अस एज वेल. ओके, या हम कोपेनहेगन की बात कर लें, या हम रियो डी जेनेरियो के समिट की बात कर लें. सो ऑल ऑफ दीज समिट्स दे डू प्रोवाइड अस डायरेक्शन towards the sustainable development, that is maintaining the greenery of our planet, so that the planet is not inside the box of question mark whether it will continue to exist or not, or may it cease to exist. Okay, right? So this is all with regard to the sustainability. और इसमें viscose stable fiber सबसे ऊपर आ रहा है because इसमें क्या टर्म दिया गया है? It is biodegradable. सबसे पहले यहाँ पे नाम डाल दिया गया है, it is biodegradable. As the sustainability is the very fresh trend of the globe, right? So when we talk about the answer, that is D, Directorate General of Trade Remedies. Okay, so let's see what is the concept here. A delegation of members of parliament, they recently appealed to the finance minister. We know very well who is the finance minister, Nirmala Sitharaman. Okay, to act against the Directorate General of Trade Remedies recommendation of imposing AD, that is anti-dumping duty on the VSF, बोले तो viscose stable fiber. So the Directorate General of Trade Remedies, which was earlier known as Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties.
तो अगर आज भी इनका नाम यही होता तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, बिकॉज बहुत सिंपल हो जाता है ना। तो इनका नाम पहले क्या था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज, लेकिन ये नाम चेंज कर दिया गया था ओके मई 2018 में, और इनको क्या नाम दे दिया गया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। Okay, and it is also considered as a single window agency for providing comprehensive and swift trade defense mechanism in India. Okay, so while the DGTR recommendations the duty to be levied, the finance minister imposes it. ओके तो दोनों में फर्क है। ओके क्या फर्क है उसमें देख लेते हैं। While the DGTR डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज रिकमेंड्स द ड्यूटी टू बी लेवाइड, ये रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन इंपोजिशन का काम किसका है, इट इज द मिनिस्ट्री ओनली। साफ शब्दों में अगर हम देखें तो हमारा जो चेक्स एंड बैलेंस है ओके वो यहां पर एक्शन में है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो यहां पर एक्शन में है। Okay everyone, so this is the one single concept, that is Directorate General of Trade Remedies. It recommends the imposition of anything or not, okay, whether to impose something or not, but इसको proper physical world में implement करने की दास्तान कौन रचेगा, it will be the Ministry of Finance only. Okay, so one is the recommendatory body, okay, another one is the body who takes the proper legitimate action. So now we move on to the next question for the day. Consider the following statements about the National Board for Wildlife. Okay, National Board for Wildlife के बारे में. So first option we have got, first statement we have got, sorry, it is the statutory body. National Board for Wildlife, it is a statutory body established under the Wildlife Protection Act 1972. Okay, it is headed by the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change. Option 2 and the statement 2. Then statement 3, in addition to being an advisory body for implementation of various schemes for forest and wildlife conservation, it also deals with matters regarding environmental pollution. Okay, तो अगर आप देखो ना तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस बेसिक क्वेश्चन में कुछ ऐसी माइन्यूट इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है जो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देती है। अब ये माइन्यूट इंफॉर्मेशन जो ऐड ऑन करी गई है ये सही है या नहीं, इसी पर हमारा जो है क्वेश्चन टिक जाता है, राइट। ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर, ऑप्शन क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट 1, it is a statutory body. Yes, it is a statutory body. Now, whether it is established under the WPA 1972 or not, then yes, the statement is also correct. The second part of the statement is also correct. It is established under the Wildlife Protection Act of 1972. Then, statement 2, it is headed by the Union Minister of Forest, Climate, okay, Forest and Climate Change. No, this statement is wrong. It is headed by the Prime Minister as the chairperson. Okay, whereas this minister, that is Minister of Environment, Forest and Climate Change, okay, works as the vice chairperson. ओके, सो स्टेटमेंट 2 हो जाता है गलत। स्टेटमेंट 3 अगर आप देखो तो पहली दो लाइंस जो हमारे स्टेटमेंट 3 की बिल्कुल करेक्ट हैं। क्या, इन एडिशन टू बीइंग एन एडवाइजरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन, ये यहां तक स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, लेकिन इसी स्टेटमेंट को गलत क्यों करार दिया जा रहा है, इसके सेकंड पार्ट की वजह से, दैट इज इट आल्सो डील्स विद मैटर्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नो, it doesn't deals with the matters regarding the environmental pollution. Okay, so guys, statement 1 stands correct, 2 incorrect and 3 also incorrect. Okay, so क्या हो जाएगा हमारा आंसर, A only, that is 1 only. So let's see what's the news here. So NGT, National Green Tribunal. Okay, NGT, ध्यान रखिएगा, NGT is once again a statutory body, it's not a constitutional body. ओके, और NGT अगर स्टैट्यूटरी के अंदर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बॉडीज की, तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है और रेगुलेटरी बॉडी भी है। ओके, सो इट हैज लेवाइड अ पेनल्टी ऑफ सम ₹1 crore
for excess squaring near the Vandalur Zoo. राइट कुछ 1 करोड़ रुपए का एक जुर्माना लगाया है एनजीटी में एक्सेस क्वायरिंग के लिए, यानी कि एक्सेस खुदाई के लिए. ओके, सो सब्सिक्वेंटली द ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी कंप्राइजिंग द चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम सुनते ही हम मोटिवेट हो जाते हैं, राइट. अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ISEIAA. अगर आपने इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाला अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लिया है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि एक चैप्टर आता है EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. इसी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर बनता है स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी. Okay, so it is SEIAA as an officer from the Directorate of Geology and Mining and Tamil Nadu Pollution Control Board. Okay, तो इन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, ये एक्सेस स्क्वायरिंग कैसे हो गई. ओके, और किसने परमिट दे दिया इसको, बिकॉज एज पर द रूल्स, एज पर द रेगुलेशंस और एज पर द लॉज व्हाट वी हैव हियर. सो वी कैन सी हियर द कंटेक्स्ट. National Green Tribunal NGT, okay, what it has done, it has levied a fine of rupees 1.02 crore on a leaseholder towards environmental compensation for excessive quarrying near where, near the Arignar Anna Zoological Park. अब एक चीज आपको यहां पे करनी है, हमें अपना इंडिया का मैप निकालना है और उसी मैप के अंदर ये आपके सामने एक नया नाम आया है, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क. ओके, सो प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, इससे रिलेटेड भी हमारे पास काफी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर. ओके, सो अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहां पे है, वंदलूर, तमिलनाडु. ओके, तो इसको आप प्लीज मार्क कर लें. द ट्रिब्यूनल सेड इफ द प्रोटेक्टेड एरिया वर विद इन 10 किलोमीटर, देखो रूल क्या बोला है, विद इन 10 किलोमीटर एरिया अगर कोई है ऑफ द प्रोजेक्ट साइट, approval must be obtained from the National Board for Wildlife before seeking environmental clearance. लेकिन ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया. Hence as a result excess squaring भी यहां पर हो गई और जो लीज होल्डर जो भी था उस पर 1.02 करोड़ का जो है फिलहाल एक पेनल्टी इंपोज किया गया है. राइट, ओके, सो ये है न्यूज, ये है हमारा कंटेक्स्ट. अभी हम बात करते हैं हमारे NBWL दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में. सो वंस अगेन अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. okay, so it is important to point out that Wildlife Act as originally enacted in 1972, guys please make a very clear and cognizant notes. Okay, as originally enacted in 1972 did not provide for the NBWL. ओके, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हमारे 1972 के एक्ट में नहीं था. इट वाज ओनली थ्रू एन अमेंडमेंट इन द एक्ट in the year 2002 NBWL was constituted. Okay, the National Board for Wildlife, though a statutory body under the Wildlife Protection Act of 1972, लेकिन 1972 में जब ये एक्ट बना तो उस टाइम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नहीं था. हमने इसको कब ऐड ऑन किया है, जब हमने 1972 के एक्ट में 2002 में अमेंडमेंट किया 30 साल बाद, तब हमने इसके अंदर एक बॉडी बनाई दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. तो कितने मेंबर की बॉडी है ये, यू कैन सी अ ह्यूज अमाउंट, 47 मेंबर कमिटी. Okay, and hence statement 1 is correct. Statement 2 incorrect. Why? Because the Prime Minister acts as the chairperson and Minister in charge of Environment, Forest and Climate Change as the vice chairperson. Okay, and the standing committee of the NBWL is chaired by the Minister of Environment, Forest and Climate Change. Okay, so ये कुछ particular news है आपके सामने. Now we have got some few more points. It is the apex advisory body which looks at the implementation of various schemes for wildlife conservation and development of wildlife and forest. Okay, तो ये statement यहाँ तक जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो स्टेटमेंट 3 का फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड पार्ट उसमें निकला उसने स्टेटमेंट 3 को इनकरेक्ट कर दिया. दैट इज इट इज नॉट इंटरेस्टेड विथ डीलिंग विथ मैटर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. उसके लिए क्या है हमारे पास, उसके लिए है हमारे पास NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल.
ओके उसके लिए हमारे पास एनजीटी अवेलेबल है विदाउट एनी डाउट। ओके नाउ फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state governments on the ways and means of promoting wildlife conservation and effectively controlling poaching and illegal trade of the wildlife and its products। ये हमारे NBWL जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये इसका काम है। ठीक है, ओके सो दिस इज ऑल विथ रिगार्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके क्वेश्चन नंबर 4, Consider the following statements about the Notified Area Committee, NAC, NAC। तो हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास चैप्टर आता है लोकल सेल्फ बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, ओके पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। The 73rd and 74th Amendment Act, that is providing the soul to the grassroots level of democracy inside the biggest democracy of this globe, that is India। Okay, so पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज वाले चैप्टर में जब हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, okay, तो उसमें हमें बताया जाता है कि there are different types of municipalities। ओके उसी में एक म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन बनती है हमारे पास, दैट इज नैक, बोले तो नोटिफाइड एरिया कमिटी। Okay, so let's see the statements and find out the correct answer. So statement 1 says that it is partially elected and partially nominated body, right, created for the administration of a fast developing town. What statement 2 has to say? The chairperson of the committee is elected by the members among themselves. Okay, so क्या है? A only, B only, C only, D only. So what will be the correct option? What will be the correct answer? So let's see. It is partially elected. No. It is partially nominated. No. It is a totally nominated body. पूरी तरीके से ये नॉमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिफाइड एरिया कमेटी। ओके नाउ द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स। नो, it is the government only who decides who is going to be the chairperson of the NAC। okay so क्या होगा सही आंसर? that is D, neither 1 neither 2। so statement 1 is wrong, statement 2 is also wrong। okay so correct answer क्या हो गया हमारे पास? D। okay तो अब ये न्यूज में कैसे आया है? तो झारखंड नोटिफाइड एरिया कमिटी, okay we talk about, okay in fact not Jharkhand, Jamshedpur notified area committee drain waste treatment plan to keep rivers healthy। तो इस एक पर्टिकुलर न्यूज के चक्कर में ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है। okay so what you can see here, a packaged sewage treatment plant PSTP or sewage treatment plant would be set up to process the drain water before being released into the rivers। okay so this is why the question is here, what we are discussing। so let's see the explanation as well। okay so the Jamshedpur notified area committee, okay JNAC, ये particular organization है। अब notified area committee is constituted for the fast developing town, okay or a town that doesn't have all conditions necessary for a municipality but otherwise is considered important। तो म्युनिसिपैलिटी बनाने लायक वो जगह नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो ऐसे में हम म्युनिसिपैलिटी वहां ना बनाकर हम बना देंगे नैक, बोले तो नोटिफाइड एरिया कमिटी। किसके लिए है ये? अ फास्ट डेवलपिंग टाउन। okay it's a fast developing town। okay so it is entirely a nominated body, that means all the members are appointed by the government। which government? state government। okay यहां पर गवर्नमेंट लिखा है, इसको क्लियर कर लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। okay the chairperson is also appointed by government along with the members, so the members of the committee do not participate in any sort of elections। okay guys so this is all with regard to the question। so we move on to the next one। consider the following statements regarding state legislative council। विधान सभा एक होती है, विधान परिषद एक होती।
Okay, so the creation, now see the statement, the creation and abolition both, okay, creation as well as abolition of the state legislative councils is done by their respective state assemblies. ओके उनकी अपनी खुद की जो स्टेट असेंबलीज हैं, बोले तो विधानसभा जो है वही करते हैं. स्टेटमेंट 2, द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन for the creation of a legislative council requires a special majority in the state assembly of the concerned state. Okay, so which of the statement given above is or are correct? Correct statement हमें बताना है. तो correct statement हमारे पास यहाँ पे क्या है? That is B, 2 only. Statement 1 is incorrect. Okay, चलिए अब हम थोड़ा सा ना explanation में बढ़ने से पहले बाइकैमरल लेजिस्लेशन, द्विसदनीय, ओके, इसके बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द बाइकैमरल लेजिस्लेशन? सी इन इंडिया when we figure about the bicameral legislation, that is at the center we have got the parliament. सेंटर में हमारे पास पार्लियामेंट है. तो जहां पर हम देखते हैं कि दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा. लोकसभा दैट इज नोन एज द लोअर हाउस, राज्यसभा दैट इज नोन एज द अपर हाउस. अब इसको हमने कहां से लिया है? इसको हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके, जैसे कि वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको हम बोलते हैं, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम इसको बोलते हैं, या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जहां ये दो सदन रहते हैं, दो हाउसेज रहते हैं. ओके, तो ब्रिटेन में इसको क्या बोला जाता है? ब्रिटेन में लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स. ओके, whereas राज्यसभा इज नोन एज हाउस ऑफ लॉर्ड्स. कहां के लॉर्ड हैं ये नहीं पता, लेकिन बोला जरूर जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. ओके, राइट. सो ये है बाइकैमरल लेजिस्लेशन, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में है, सेंटर में है, स्टेट्स में नहीं. एंड आई शैल रिकरेक्ट माई सेल्फ, इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेशन सारे स्टेट्स में नहीं है. देयर आर ओनली 6 states with bicameral legislation. ओके, तो इसमें हमारा कर्नाटका आ जाता है सबसे पहले, फिर इसमें हमारे पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. ये सारे स्टेट्स हमारे पास एड ऑन हो जाते हैं विथ द बाइकैमरल लेजिस्लेशन. ओके, हर स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेशन नहीं है. बाकी यानी कि 22 स्टेट्स हमारे पास जो हैं, उन सब में सिर्फ और सिर्फ क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली. They all have only legislative assemblies and nothing else. Okay, these are the 6 states, those who have legislative assemblies as well as legislative councils. Okay, पानी पिला दीजिए. राइट, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं विधान परिषद. ओके, तो ध्यान देना है, विधान परिषद ओके सिर्फ 6 स्टेट्स में है, ऑल ओवर इंडिया नहीं. राइट, ओके, एंड नो यूनियन टेरिटरी इज देयर विच इज हैविंग विधान परिषद. ओके, थैंक यू. एक और चाहिए. ओके गाइस, सो सही जवाब क्या है हमारा इस क्वेश्चन का? अब अगर हम क्वेश्चन पे वापस चलें तो बी, दैट इज 2 ओनली. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन एंड लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्टली, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज देयर in our today's session. Why are we discussing it? So discussion is here because of this news, that is proposal for 4 states for creating legislative council is under examination, said the government. Okay, so what we can see, proposals to create legislative councils in Odisha, West Bengal, Rajasthan and Assam. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक चीज ध्यान रखना, ये फिलहाल सिर्फ प्रपोजल है, यानी कि प्रस्ताव है. Do not get confused कि इन स्टेट्स में भी बन गया है, नहीं. इट इज व्हाट वी कॉल
अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी तो कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं, अभी तो नींव भी नहीं रखी गई है, लेकिन बस अभी बात करी गई है। जस्ट अ प्रपोजल वेयर इन द 2 ईस्टर्न स्टेट्स, ओके, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, देन राजस्थान एंड 1 नॉर्थ ईस्ट, वंडरफुल नॉर्थ ईस्ट असम। ओके, सो यहां पर अभी रिकमेंडेशन डाली गई है, प्रपोजल डाला गया है, अभी इस पर यहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं शुरू करी गई है। Okay, so here we go with the explanation. Okay, in India the state legislative councils are the upper house of the state legislature, also known as Vidhan Parishad. ओके, तो 6 स्टेट्स हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। यहां पर है हमारी विधान परिषद, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। सो दे हैव गॉट बाइकैमरल लेजिस्लेशन, विधान परिषद एंड विधान सभा। ओके, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स for the creation and abolition of legislative council in the states under article 169, but it can be done by the parliament only and not by the concerned states. स्टेट अपनी मर्जी से विधान परिषद बना या एबॉलिश नहीं कर सकते। Okay, it is done by the union parliament only. So you can see it's clearly written. Accordingly, the parliament can abolish or create if the concerned state passes a resolution. स्टेट रेजोल्यूशन पास करके देगा कि हाँ हम चाहते हैं, हमारे लेट्स से फॉर एग्जांपल असम ने बोला यस वी वांट टू एस्टैब्लिश the Vidhan Parishad as well. So this resolution passed by the Assam government will be given, Assam Legislative Assembly will be forwarded to the Union Parliament and there it will be decided. Okay, so under which article? Article 169. Okay, so Parliament may create or abolish the council in the Legislative Assembly of the state that passes the resolution. Okay, so statement 1 stands correct. Statement 2, the solution, the resolution for the creation of legislative council must be passed by a special majority. Okay, that is majority of total membership of this assembly and a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Okay, sorry, so statement 2 is correct, statement 1 there was incorrect. Okay, so this was the question. We move on to the next question for the day, the question number 6. With reference to horseshoe crab, sometimes seen in the news, consider the following statements. Okay, horseshoe crab दरअसल क्या होता है? So स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं horseshoe crab के बारे में. So it has a different oxygen carrying protein called hemocyanin. ओके, ये जो हॉर्स शू क्रैब है, ओके, हॉर्स शू क्रैब मतलब हॉर्स शू जैसा दिखने वाला, ऑब्वियसली तो बट ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में रख सकते हैं हम इसे। ओके, सो हॉर्स शू क्रैब इट इज हैविंग अ डिफरेंट ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, एक अलग डिस्टिंक्ट टाइप का प्रोटीन होता है इनकी बॉडी में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? हेमोसाइनिन। Okay, so statement 1 it is. Statement 2, hemocyanins are copper containing respiratory pigments found only in the horseshoe crab blood. Okay, ये जो हेमोसाइनिन है, सबसे पहली चीज देखो, इस स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स हैं, 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है? That hemocyanins they are copper containing respiratory pigments. Statement 2 first part. Second part it is that they are found only in horseshoe crabs. Take statement 3. The blood of horseshoe crab is very important for preparation of rapid diagnostic reagents. मतलब चूस लो इनका खून. Statement 4. All injectable and medicines are tested with the help of horseshoe crabs. बेचारे, राइट? ओके, सो अब हमें बताना है सही जवाब, सही स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन सा है। सो हियर वी गो, आंसर इज डी, 1, 3 and 4 only. Okay, what is the correct answer? D, that is 1, 3, 4. स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। अब कैसे गलत हो गया ये, आइए उस पर चर्चा करते हैं।
Hemocyanins are copper containing respiratory pigments. True. Very very true. Okay. Statement 2 का part 2 is incorrect. That is, they are found only in horseshoe crab. नहीं यार, इतना भी यूनिक नहीं है ये, है ना। ये और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉरी स्पीसीज हैं जिसमें ये पाया जाता है। अब ये न्यूज में क्यों है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सो horseshoe crabs, they are disappearing off Odisha, has scientists alarmed. ओके, horseshoe crab जो हमारे उड़ीसा में पाए जाते हैं, ये वहां से डिसअपियर हो रहे हैं। ओके, तो इस पर ये पूरी जो है न्यूज छपी है। ओके, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। ओके, क्या क्या यहाँ पे है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, जैसे कि हमने बात करी कि इनके अंदर होता है हेमोसाइनिन, which are okay, they has copper rather than iron, which gives horseshoe crab blood its brighter blue color. ओके, तो अब आपको पता है दुनिया में हर एक स्पीसीज का रंग लाल नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 2 हमने देखा है कि इनकरेक्ट था, बिकॉज ये कुछ और भी स्पीसीज हैं जैसे कि बाइवल्व्स, गैस्ट्रोपोड्स और सिफलोपोड्स, उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक, नाउ statement 3 and 4 they are correct as well. The blood of horseshoe crab is very important for the preparation of rapid diagnostic reagents, and all injectable and medicines they are tested with the help of the horseshoe crabs. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली भी और बायोलॉजिकली भी हमारे लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. In the context of unique land parcel identification number, ULPIN, consider the following statement. So statement 1, इसमें क्या बोला गया है, that ULPIN is part of the Digital India Land Records Modernization Program. Statement 2, it's a 14-digit numeric unique ID. अब इसके देखो दो पार्ट्स हैं स्टेटमेंट 2 के। पहला है 14-digit numeric identity. Okay. Second, assigned for a land parcel based on geo coordinates. Statement 3, the scheme is implemented in all states and union territories. Okay. मतलब कि ये पैन इंडिया स्कीम है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। सो सही जवाब क्या होगा? सो सही जवाब होगा हमारा ए, दैट इज 1 ओनली, द अदर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. Okay, why? Let's see. Because ULPIN is 14-digit alphanumeric, not numeric. In fact, alphanumeric. Second part of the statement is correct. Third statement is also incorrect. That is, the scheme is implemented in all states. No, it is not being implemented throughout India so far. अब तक. Okay. तो क्यों है ये particular point न्यूज में, ये particular question न्यूज में क्यों है? तो आइए उस पर बात करते हैं. That is, citizen centric भू आधार will revolutionize governance of सशक्त भारत. ओके, क्या निकल कर आया है? भू आधार. ओके, तो इसमें देखिए, इसमें अब एक्सप्लेनेशन देखिए हम अपने क्वेश्चन का. सो द कंटेक्स्ट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, द भू आधार और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप इसको ULPIN ULPIN बोल लें या भू आधार बोल लें, भूमि का आधार. ओके, भूमि का आधार. ओके, अभी इसको आप लोग किसी फिल्म एक्ट्रेस से मत जोड़ लीजिएगा, सर इस एक्ट्रेस का भी तो नाम भूमि है, उसके आधार की बात कर रहे हैं क्या हम? नहीं. तो जोक्स अपार्ट, भू आधार बोले तो भूमि, हमारी जमीन, लैंड का रिकॉर्ड, दैट इज आधार. ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज ULPIN ULPIN बोले तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर. जैसे कि हम सब लोगों के पास हमारा इंडिविजुअल आधार कार्ड है, उसी तरीके से जमीनों को भी उनका आधार कार्ड बनाकर दिया जा रहा है. और ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नीडेड और वंडरफुल स्टेप है गवर्नमेंट का. ओके, बिकॉज जरूरी है इंडिया में हर एक जमीन का आइडेंटिफिकेशन करके रखना.
for the sake of our tribals, for the sake of our non-tribals as well. ओके ट्राइबल्स के लिए इसलिए बिकॉज उनकी जमीन छीननी नहीं चाहिए, बिकॉज उनकी जमीन उनके लिए सिर्फ जमीन नहीं है, वो उनका कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन भी है. ओके और नॉन ट्राइबल्स वाई? बिकॉज वी कैन सी मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स इन इंडिया इज विथ रिगार्ड टू द लैंड इटसेल्फ. Okay, and we have seen that how much bloodbath or bloodshed has taken place inside our territory, inside our country, because of the so-called land disputes only. Right? Okay. So statement 1 is correct. क्या बोला गया यहाँ पे? ULPIN, Unique Land Parcel Identification Number, okay, is part of the Digital India Land Records Modernization Program. DILRMP, Digital India Land Records Modernization Program, and the identification is based on the longitude and latitude coordinates of the land parcel. Okay, जो land parcel मतलब जमीन का टुकड़ा. ओके लैंड पार्सल का मतलब जमीन का टुकड़ा, वो कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, दोनों को टैग किया जाता है. दैट इज ज्योग्राफिकल टैगिंग. ओके कोऑर्डिनेट्स सुना है ना आपने, अपने गूगल मैप्स पे देखा होगा या मूवीज में ये टर्म सुना होगा, इतने कोऑर्डिनेट्स पर हैं, इतने डिग्री लेफ्ट, इतने डिग्री राइट, ओके इतना डिग्री साउथ, इतना डिग्री नॉर्थ, इतने आवर्स, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स पर लोकेटेड है ये पर्टिकुलर लोकेशन. ओके ये पर्टिकुलर जगह. ओके तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट्स. और ये हम कैसे निकालते हैं? लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड. ओके जो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं, ओके जो वर्टिकल और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उन दोनों का जो है यहाँ पर हिसाब रखा जाता है, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स, और उस हिसाब से ULPIN बनाया जाता है. ओके so statement 2 is incorrect. Why? Because it is 14 digit, yes, but not numeric, it's alphanumeric, यानी कि उसमें नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी, जैसे कि आपका पैन कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड पूरी तरीके से न्यूमेरिक है लेकिन आपका पैन कार्ड अल्फान्यूमेरिक है, तो उस तरीके से ULPIN जो हमारे पास है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार जो बनेगा वो भी अल्फान्यूमेरिक होगा, यानी कि उसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे. ओके नाउ statement 3 is also incorrect. How? It has been rolled out in 26 states only so far. Okay, मेघालय में अभी इसको हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है because of the community ownership of the land parcels. Why? Because we are talking about the tribal population. Okay, हमें हमारे ट्राइब्स का सबसे पहले ध्यान रखना होता है, बिकॉज वल्नरेबल सेक्शन है, ओके वीक सेक्शन है, और इन्हें हमें मेन स्ट्रीम, मेन मार्जिन में लेकर आना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो इसीलिए हम बात करते हैं हमारे ट्राइब्स को स्पेशल कैटेगरी में हम हमेशा रखते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल कैटेगरी दिया है. यू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, उसमें एक्सेप्शंस में डाले गए हैं हमारे ट्राइब्स को. आर्टिकल 15 में भी ये बात बोली गई है. ओके फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं हमारे शेड्यूल्ड एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमने देखा कि 6th शेड्यूल किस तरीके से स्पेसिफिकली रखा ही गया है ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. व्हेन यू सी शेड्यूल 6, okay, when you figure about schedule 6, so what we have seen, that is article 244 clause 2 and article 275 clause 1. ये है ना हमारे शेड्यूल 6 में. ओके इसमें क्या बोला गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, द ट्राइबल एरियाज ऑफ AMTM, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको AMTM. ए फॉर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. ये 4 स्टेट्स हैं जहां पर हमारे पास अच्छी खासी जो है ट्राइबल पॉपुलेशन अवेलेबल है, तो इसीलिए इसको अलग शेड्यूल में ही डाल के रखा गया है. 6th शेड्यूल, ओके आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1. Okay, so statement 3 is incorrect. Okay, why? पैन इंडिया नहीं है, 26 स्टेट्स में ही अभी फिलहाल ये हमारे पास अवेलेबल है. Okay, so we move on to the 8th question for the day. So it is with regard to the Shanghai Cooperation Organization. Question देखो क्या बोला गया? Which of the statement given below is इनकरेक्ट, यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. ओके रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so it is the world's largest, statement 1, it is the world's largest regional organization in terms of geographic scope and population. आपके दिमाग में आ जाएगा UN, ठीक है कि नहीं यार बात तो गलत है. यूनाइटेड नेशंस है ना, वो पूरी दुनिया कवर करता है, लेकिन जरा टर्म देखो, क्वेश्चन देखो.
रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं। ओके, एक पर्टिकुलर रीजन के ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। ओके, क्या बोला गया यहां पे? इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग, चाइना में है। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेटमेंट 3, आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर टू, दैट इज चाइनीज एंड रशियन। देन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट इज इट्स सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, अब देखो इसका भी दो पार्ट है, विच मीट्स, ये फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट 4 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? विच मीट्स वंस इन एवरी 2 years। ठीक, अब अगर आप देखो स्टेटमेंट 3 जो हमारा ये सी, ओके, इसके भी दो पार्ट्स हैं। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर ओनली चाइनीज एंड रशियन। ठीक, अब हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनमें से इनकरेक्ट जो है उस पर बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 यानी स्टेटमेंट ए पूरी तरीके से करेक्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, हेडक्वार्टर्स कहां पे है इसका? चाइना, बीजिंग में। ठीक, फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी क्या हैं? यस, चाइनीज एंड रशियन, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। स्टेटमेंट 4 का पहला पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप बात करोगे डी, सो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स इज इट्स सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फर्स्ट हाफ, okay, the first part of the statement D. But second, which meets once in 2 years, no, that's wrong. They meet once every year. ओके, SCO की जो मीटिंग होती है वो हर साल होती है, बायएनियल नहीं होती है। ओके, एनुअली होती है। ओके, अब ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट इज द न्यूज? सो इंडिया मूव्स एक्शन प्लान टू मार्क 2023 एज ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट एट द SCO मीट। हमने बोला कि 2023 को टूरिज्म डेवलपमेंट साल डिक्लेयर किया जाए। अब हम ये आजकल कर रहे हैं, हम ये चीज बहुत बखूबी कर रहे हैं। ओके, सो द मीटिंग was also attended by the senior officials from Department of Tourism from the SCO member countries, besides the representatives of the Secretariat, Ministry of Tourism and Ministry of External Affairs, right? So we have taken what? 2023 को डिक्लेयर किया जाए क्या? ईयर ऑफ टूरिज्म। ओके, तो अब की बार ये मीटिंग कहां हो रही है? वाराणसी। ओके, बनारस, यूपी में। नेक्स्ट, द कंटेक्स्ट। सो कंटेक्स्ट तो हमने देख लिया। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 4 का फर्स्ट हाफ करेक्ट है, दैट इज काउंसिल्स ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स इज इट्स सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, बट दे मीट वंस एवरी ईयर। दे डू नॉट मीट वंस इन 2 years, दे मीट वंस every year. Okay, next question number 9. This tiger reserve is located amidst misty blue hills along the turbulent Noa Dahing River in the sprawling tropical rainforest, and it was declared as a tiger reserve by the government in 1983. वर्ल्ड कप जीता हम सब उस साल, उसी साल इसको जो है ना बोला अरे अब तो एक टाइगर रिजर्व बनाओ, हमारे टाइगर्स वर्ल्ड कप लेकर आए हैं। ओके, सो द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन दी दफा बूम रेंज ऑफ द मिश्मी हिल्स एंड द पटकई रेंज। इट इज द 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ओके, अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट पे तो स्टेटमेंट देख लिया, लेकिन भाई ये है क्या? ओके, सो इज इट द नमेरी, इज इट नामदफा, पखुई और दंपा टाइगर रिजर्व? तो 4 ऑप्शंस है हमारे सामने। तो अगर सही जवाब की बात करें तो साफ शब्दों में इट इज नामदफा टाइगर रिजर्व। ओके, तो यहां दिस को हटाकर अगर हम बस साफ लिख दें यहां पे नामदफा टाइगर रिजर्व। Okay, so it's located in the misty blue hills along the turbulent river known as Noha Dahing River. Okay, in the tropical rainforest. इसको 1983 में डिक्लेयर किया गया था एज अ टाइगर रिजर्व। ओके, इन द दफा बूम रेंज ऑफ मिश्मे हिल्स एंड पटकई बूम। ओके, सो लार्जेस्ट नहीं, 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये हमारे मुल्क का। ओके, क्या नाम है? नामदफा
Tiger Reserve. Okay, so Tiger helps uncover timber depots in Arunachal Pradesh as Namdapha's National Park. Okay, so यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, timber smugglers managed to carve a dirt track to the core areas of Namdapha Tiger Reserve. लेकिन यहाँ के टाइगर्स ने बोला हम तुम्हें स्मगलिंग नहीं करने देंगे. Okay, so what you can see, there are reasons to believe that the logging activities may have forced the tiger out of the dense core area of Namdapha, okay, towards the bungalow, which is close to 157-kilometer road from Miao to Vijayanagar through a large stretch of the park. ओके, सो स्मगलिंग एक्टिविटीज यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे टाइगर को बाहर आना पड़ा. ओके, सो ये जो कंटेक्स्ट है ये हम लोग इसको ऑलरेडी अभी अपने क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं. ओके, विद रिगार्ड टू द नमदफा टाइगर रिजर्व. ओके, सो वी मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज द 10th क्वेश्चन फॉर द डे. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC. ओके, ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, और ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी होता है. ठीक, सो व्हाट आर द स्टेटमेंट्स हियर? ओके, सो इट इज अ UN body to investigate war crimes, genocide and crimes against humanity. It was established in accordance with the Rome Statute signed on 17th July 1998. अब देखो इसके सेकंड स्टेटमेंट को, इसके भी दो हिस्से हैं. फर्स्ट, established in accordance with the Rome Statute. Second, signed on 17th July 1998. ओके, अब ये देखने वाली बात हो गई. फिर इट कैन इश्यू अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट सिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट. बोले तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. सिटिंग हेड मतलब क्या, ये होता है ना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मोनार्क, यही होते हैं सिटिंग हेड्स. ओके, राइट. तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या राजा के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इश्यू कर सकते हैं. भाई ये तो बड़ी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस हिसाब से, तो है ना. अब क्यों न्यूज में आया है? न्यूज में आया है पुतिन साहब की वजह से. ओके, तो पहले सही जवाब देख लेते हैं इसका. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. ये UN बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट है UN से. Established in accordance with Rome Statute, correct, and it can issue arrest warrants against the sitting heads. Okay, so that is the point here. ICC issues arrest warrant against Vladimir Putin for war crimes in Ukraine. ओके, सो वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन जो हो रहा है उसके अगेंस्ट ICC ने बोला कि हम पुतिन को अरेस्ट कर लेंगे. जाओ अरेस्ट करके देखो, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए तो बताना. Okay, so guys, what we can see here, statement 1 is not correct. Okay, as it is an independent judicial body with jurisdiction over persons charged with genocide, crimes against humanity and war crimes. So statement 1 is correct. The court was established by the Rome Statute, which was negotiated within the UN. However, it is created as an independent judicial body distinct from UN. Okay, so the ICC was created as a standing body, not like the United Nations Security Council, okay, and had established ad hoc tribunals to address atrocities in places such as Yugoslavia and Rwanda. ओके, तो ICC यहां पर एक्शन ले चुका है, अब पहुंच रहे हैं ये रशिया की तरफ. ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. जुलाई 1998 को साइन हुआ था, लेकिन स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है. ओके, इट कैन इश्यू अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट द सिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट. Okay, so the court considered the warrants as secret in order to protect victims and witnesses and also safeguards the investigation. तो अभी पुतिन साहब के अगेंस्ट इन्होंने जो है अरेस्ट वारंट जारी किया है, तो स्टेटमेंट 3 जो उसमें बोला गया था कि इट कैन नॉट इश्यू, तो पॉइंट इज इट कैन इश्यू अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट द सिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट. Okay guys, so I hope you learned a lot, you enjoyed a lot this session. Okay, and thank you so much for joining me in here today. We'll see you all soon tomorrow morning sharp 11 AM in our DCA, that is Daily Current Affairs Analysis class. Thank you for joining guys. See you all soon. Bye bye, take care, Jai Hind.